Hi, welcome to Obsessing Over Stuff. Today we're going to talk about India's Got Latent. But before that, let's talk about Sanam Teri Kasam का re-release. सनम तेरी कसम फाइनली थिएटर्स में री-रिलीज हो गया है एंड पीपल आर गोइंग क्रेजी. हर वो लोग जिन्होंने मूवी को नाम भी नहीं सुना था पहली बार, दे ऑल हैव सडनली बिकम ट्रू फैंस. ये मूवी ऑलमोस्ट 10 साल पहले रिलीज हुई थी. दैट टाइम वो अपने मेकिंग बजट जितना भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर पाई थी. एंड नाउ पीपल हैव सडनली मेड इट अ ट्रू मास्टरपीस. Thousands of reels are going viral. People are going crazy, crying in the theaters. Songs में हजारों reels create हो गई है. I saw this movie in theaters 10 years back when it was released, and despite a very few cliche elements, I found the movie pretty decent and definitely a one-time watch. Truly emotional. But can you imagine if this movie got what it deserved at the time of its initial release? Why do we take so long to acknowledge good movies? 10 साल लग गए for us to finally notice this movie and finally give this credit to this amazing actor. कितना स्ट्रगल किया उसने. अगर 10 साल पहले इस मूवी को डिजर्विंग अटेंशन मिल जाता, then this actor would have got hundreds of better movies by now. इसका करियर बन जाता. हमने लिटरली इसका सक्सेस 10 साल डिले कर दिया. We would have gotten so many offers and opportunities, and he would have become a star by now if we knew as an audience how to acknowledge good movies on time. The same thing happened with Tumbad recently. Tumbad was a folk horror film and was very unique. The cinematography was amazing, plus the story and the acting. In सब के बाद भी, Tumbad was a theatrical flop. At the time of its first release, it could hardly make a box office collection of 5.5 crores, while its budget was 15 crores. But after its re-release, people treated it like the best Indian horror movie ever made, finally acknowledging how amazing the characters of Dadi and Hastar were. The similar thing happened to Laila Majnu. It hardly earned 3 crores उसके initial time पे, but now जब ये movie re-release हुई, it became the sixth highest grossing re-release Indian film of all time. But is it worth it? Giving credit so late. Just think अगर उसी टाइम पे इस मूवी को हिट कर दिया जाता, तो तृप्ति डिमरी एनिमल के बोल्ड सीन्स की वजह से नहीं बल्कि अपनी एक्टिंग की वजह से वायरल होती. बोथ द लीड एक्टर्स, Avinash Tiwari and Tripti Dimri, were outstanding in the film, but it took them so late to get any further movies. These actors would have gotten amazing movies and amazing chances by now if we had noticed them before. इतने सालों के बाद किसी की फिल्म को एक्नॉलेज करके क्या फ़ायदा जब इतने साल उन एक्टर्स के स्ट्रगल करने में निकल गए. And now we have news of various movies getting released like a culture. Anyways, coming to the main topic, India's Got Latent. Recently बहुत controversial हो चुका है ये show, specifically because of the remarks made by Beer Biceps and the Rebel Kid. This show started off so great, it was epic. Undoubtedly the most funniest show by far. But it kept pushing its limit. The comments made by Ranveer, for which he's getting so much hate, is genuinely disgusting. And it is not funny in any way. I think judges पे इतना pressure है cool बनने का वहाँ पे और कुछ नहीं. Commenting on parents sexually like that, it is just gross. वो सिर्फ ऑफेंसिव होने की बात नहीं है, बट उसमें कुछ फनी ही नहीं है. ऐसे जोक्स डाइजेस्ट हो ही नहीं सकते. He apologized instantly after the episode release, but अब क्या फ़ायदा. ही इज़ द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ इज्जत गंवाने में एक मोमेंट ही लगती है. इतना रेपुटेशन बनाया, ऑल गॉन विथ वन जोक. डू यू थिंक ही विल हैव द सेम क्रेडिबिलिटी नाउ एज बिफोर? B Pratt cancelled his podcast with him because of this controversy. Police have even arrived on his residence. Rebel Kid talking openly about dick sizes like that. Can you imagine if a guy did that? He will be called out immediately. Actually, judges को इतना peer pressure है to match the dark sense of humor of समय रैना that वो extremely derogatory कुछ बोल देते हैं just to stand out. You think audience would like that if they are not passing bold comments or snarky comments like that? लेटेंट की जो रील्स वायरल होती है उसमें जजेस में ऐसा ही कुछ डांग या कुछ अब्यूजिव बोला होता है. सो दीज जजेस कांट एक्ट एकदम बोरिंग एंड दे कांट टॉक नॉर्मली कमिंग ऑन दिस शो. ये शो का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा कर दिया है दैट यू हैव टू गिव सैसी कमबैक्स फुल ऑफ डबल मीनिंग एंड अब्यूजिव जोक्स फुल ऑफ वल्गैरिटी, तो ही ऑडियंस हुटिंग करेगी. रिबल किट का जो कमेंट था जिसके लिए उसको कॉल आउट किया जा रहा है उसमें उसको इतनी चीयर्स मिली, समय ने तो कन्फेटी तक फोड़ दी. Certain jokes have been so weird on this show. Exactly like when Samay Rana said that the only thing I have on Madhur Virli is that his father passed away. उसमें बात सिर्फ ऑफेंसिव होने की नहीं है, बात इसमें है कि इसमें हंसने जैसा क्या है. What are we supposed to say that, oh, his father passed away, that's so funny? How is anyone supposed to laugh on that? और इसे बहुत सारे jokes हैं जो problematic है. See, comedy is subjective. But there are certain jokes जिस पे हंसी नहीं आएगी, सिर्फ यक फील होगा.
What I used to love about this show that ये scripted feel नहीं होता था, बहुत ही raw है, unfiltered comedy है, and this was the selling point of this show. But कुछ jokes have been very sick जिस पे इतना outrage हो रहा है. See, I completely believe that comedy में आपको offend नहीं होना चाहिए. People should be sporting enough to take the jokes on themselves. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ रोस्ट कॉमेडी और इंसल्ट कॉमेडी. इनफैक्ट पैनल पे जितने जजेस आते हैं, भले वो कितने भी फेमस हो, उनकी भी उतनी ही रॉ तरह से इंसल्ट की जाती है, विच इज़ रियली फनी. दैट इज़ वाई इट जनरेट्स प्योर लाफ्टर. बट इस बार काफ़ी लाइन्स क्रॉस हुई. ऑल्सो गाली देना भी ऑफेंसिव नहीं है. समटाइम्स इट इम्प्रूव्स योर जोक्स, नो डाउट. कोई कोई जोक्स पे गाली सूट करती भी है. बट अब इस शो पे ऐसा हो गया है दैट यू हैव टू पास अब्यूजिव जोक्स जस्ट टू लुक कूल. लेटेंट में जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ भी गाली यूज़ होती है. क्लियरली यू कैन सी दैट इट्स नॉट नीडेड. स्टॉप ग्लोरीफाइंग बेमतलब की गाली देना. अब अनफिल्टर्ड के नाम पे आप कुछ भी डार्क नहीं बोल सकते. सी, आई एम अ ह्यूज समय रैना फैन एंड ही इज़ द फेस ऑफ इंडियन स्टैंड अप राइट नाउ. विच इज़ आई एम स्केयर दैट वो कहीं कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि अब लगता है दैट इस शो का फॉर्मेट ही बन गया है टू पास एक्सट्रीम वल्गर कमेंट्स, सेक्शन अब्यूजिव कुछ बोल देना जस्ट टू लुक बैड एस. दीपक कलार और राखी सावंत के एपिसोड में भी बहुत कुछ ऑफेंसिव एंड अब्यूजिव था. सो मच शिट. बट क्योंकि उनसे वही एक्सपेक्टेड था सो नोबडी केयर्ड. बट यहाँ पे रणवीर की इमेज ऐसी नहीं थी. क्लीन एंड स्पिरिचुअल थी, विच इज़ वाई ही इज़ गेटिंग सो मच हेट. पीपल हैव ट्वीटेड सो मच अगेंस्ट इट नाउ दैट ये शो जो वायरल था नाउ इज़ फेसिंग सो मेनी FIRs एंड थ्रेट्स. इंडियन ऑडियंस जितनी जल्दी स्टार बनाती है और सर पे चढ़ाती है उतनी जल्दी नीचे भी उतारती है. आई रियली होप दे अंडरस्टैंड दैट ये शो जैसा था उसको वैसे ही रहने दें. डार्क कॉमेडी का जो प्रेशर इनके सर पे है उनकी वजह से वो कुछ ऐसा ना करे जो इरिवर्सिबल हो जाए. कॉमेडियंस की ड्यूटी नहीं है कि वो यूथ को बहुत सिखाए और बहुत ही ज्ञान दे. दैट्स नॉट द पर्पस ऑफ कॉमेडी. द पर्पस ऑफ कॉमेडी इज टू मेक पीपल लाफ. बट द ओनली प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन द थिन लाइन बिटवीन द डार्क जोक एंड अ डिस्गस्टिंग जोक इज क्रॉस्ड. किसी को आई डोंट थिंक कि डार्क जोक से प्रॉब्लम है. एज एन इंडियन ऑडियंस वी हैव रियली इवॉल्व्ड. अगर हमें डार्क जोक से प्रॉब्लम होती तो समय रहना ने अपने जो जोक्स क्रैक किए थे अबाउट हिज ग्रैंडफादर्स डेथ, तब वो इतने वायरल नहीं होते और लेटेंट के इतने एपिसोड्स जो क्लासिक हिट हुए वो नहीं होते. सो आई थिंक एज एन ऑडियंस वी हैव इवॉल्व्ड. फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है. पीपल आर नॉट लिबरेटिंग कॉमेडी, कीपिंग इट completely free from getting offended. But we all have to agree that this time it was too much for anyone. Anyways, let's hope that this controversy ends soon and people don't drag this any further. They have and they will learn from their mistakes. Let's not cancel them completely for this because they have come this far. Also, आपने कभी सोचा है कि इनको ही इतना क्लैश क्यों मिल रहा है? That episode of Latent got removed by YouTube इतने backlashes की वजह से. But what about the other filth that's there already there on the internet? इन दोनों पे इतना react करने के लिए tweets and reactions were quick. लोग habitat के बाहर तक पहुंच गए to protest. जेल में डालना इज़ नॉट फेयर एट ऑल बिकॉज एज कंटेंट क्रिएटर्स आपका कैंसिल होना ही आपका सबसे बड़ा रेप्रिकेशन है. बट दे आर नॉट क्रिमिनल्स कि आप उनको जेल में डाल दोगे. दैट्स गोइंग टू फार. आई विश द गवर्नमेंट एंड द पुलिस ऑल्सो एक्ट दिस क्विक विद अदर मोस्ट सीरियस कॉन्ट्रोवर्सीज ऑन द इंटरनेट. जब लोग इंटरनेट पे ओपनली थ्रेट्स देते हैं या अब्यूज़ करते हैं. All I'm saying is that if you are so offended by internet vulgarity and filth, then you should also show your outrage towards the soft porn जो पूरे दिन हमारे इंस्टा फीड पे आता है. गेट रेडी विथ मी के नाम पे एंड डांस के नाम पे जो सेमी न्यूडिटी कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं, वेयर विल दैट गेट कैंसल्ड? वो हमारे कल्चर को पोल्यूट नहीं कर रहा. बस एक शो के पीछे पड़ जाना भी सही नहीं है. दे हैव लर्न देयर लेसन. अभी जब गौतमी के मॉर्फ इमेजेस पोस्ट किए गए थे तब तो कोई ट्वीट नहीं हुआ. व्हाट अबाउट दैट? दैट वाज अबाउट अ गर्ल्स डिग्निटी बट नो गवर्नमेंट इंटरवीन्ड. We have ignored every filth on internet, but somehow this becomes a national issue. That's too much. Anyways, thank you so much guys for watching this. I hope you like it. Please subscribe for more. Thank you.